Assalamualaikum. This video is on the solution of a question asked by ICAP in the attempt of spring 2020, and the paper was FAR2. So first we will see the requirement. What has the examiner asked from the examining? So there are two requirements, one of 8 and 12. So first of this, prepare MML statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended December 31st 2019. And second one is the note on taxation for inclusion in the ML's financial statement for ended 31st December, including a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accounting profit. So starting with the requirements, we have read the requirements. Now we move to the question that what data has been given by the examiner. The following balances have been extracted from trial balance of MML as at December 31st 2019. These are closing balances other than the specified. So trade receivables are 1200, capital work in progress, allowance for bad debts is opening, sales, cost of goods sold, all the data regarding P&L. While finalizing the financial statement of MLL, the following issues have been noted. Trade receivable including a balance of rupees 40 million which needs to be written off. MML maintains a provision for doubtful debts at 5% of trade receivable. As per tax laws, only write-offs are allowed as deduction. Capital work in progress includes interest cost of 84 million on specifically acquired bank loan during the year. However, interest of 16 million earned by investing surplus fund available from the bank has been included in other income. यानी कि भाई यहाँ पे CWIP के अंदर हमने इंक्लूड कर दी इंटरेस्ट कॉस्ट 84 मिलियन की, जो कि हमने बोरो की थी बैंक से, लोन बोरो किया था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमने पे की वो हमने CWIP में डेबिट कर दी है. अच्छा, फिर ये कि भाई एज पर टैक्स लॉस बोरिंग कॉस्ट अलाउड व्हेन इनकर्ड. बोरिंग कॉस्ट सिर्फ उसी वक्त अलाउड होती हैं जब वो एसेट मुकम्मल हो जाए. बोरिंग कॉस्ट आर अलाउड व्हेन इनकर्ड ओनली. अच्छा, फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन 1 Feb. Recognition criteria for capitalization of internal intangible asset was met on 1st May. The product was launched on 31 October 2019. It is estimated the new product will have 5 years of life, and it may assume that all cost accrued evenly over the period. Research and development cost is allowed as a tax deduction over 10 years. So research and development cost, here it is, and it has the cost of 180 million, and it has the 180 million was spent from the period of 1 Feb to 31st October 2019. This whole amount of 180 million will be expensed out over 10 years in the as per tax laws, but there will be a different treatment for accounting perspective. So we will see when we will reach at that point in the solution. Tax depreciation for the year ended is exceeded amounting to depreciation already recorded by 200 million का. 200 मिलियन से ज़्यादा का टैक्स डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग से ज़्यादा है टैक्स डेप्रिसिएशन 200 मिलियन से. फिर ये है कि ऑफिस बिल्डिंग नेट बुक वैल्यू थी 900 मिलियन की December 31st 2018 पे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस बताया विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 12 years. During 2019, MML decided to opt revaluation model for its building. फिर consequently फेयर वैल्यू बिल्डिंग की थी स्टार्ट ऑफ 2019 पे 1200 मिलियन की. रिवोल्यूशन मॉडल अकाउंट फॉर नहीं किया गया. डेप्रिसिएशन जो कि अभी तक की गई है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड की गई है. रिवोल्यूशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट. ओबियसली OCI से होता हुआ जाता है वो, तो टैक्सेबल प्रॉफिट पर उसको हिट नहीं आएगा. फिर ये कि कैपिटल गेन इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स. Dividend was taxable on receipt basis 15% in June 2019. However, with effect from 1 January 2020, dividend received would be taxable at 20%. यानी receipt पे taxable है dividend और capital gain exempt है टैक्स से. 32% का applicable rate है. जहाँ जहाँ नहीं बताया हुआ, जहाँ बता दिया है वहाँ पे वो जो स्पेसिफाइड है वहीं पर ही वो वाले एप्लीकेबल होंगे. इसके अलावा 32% एप्लीकेबल है. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी स्टेट वो आ गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का. तो सबसे पहले सेल्स है. अच्छा, मेन एक चीज़ ये है कि भाई हमने यहाँ देखा सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सीधा सीधा सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पिक करेंगे और उसको वहाँ पे डाल देंगे. पहले दिन हम इसको व्यू बड़ा कर दें, उसका ईजी हो जाए. सेल्स हमारे पास 2400 मिलियन की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास 1320 मिलियन के. 2500
और 1320 मिलियन। सही, ये आ गया हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सही, इसको हम नेट कर लेते हैं ज़रा। तो ये हमारा आ गया जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एडमिन पे। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस के बारे में भाई कितनी कॉस्ट है उसने बताई है 302 की। अच्छा, 302 में पहले एक तो हमारे पास एक एडजस्टमेंट अगर हम देख लें कोई आती है हमारे पास, तो ट्रेड रिसीवेबल की है, तो ये तो सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगी। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये हम देख लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट तो पहले हमारे पास है भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है हमारी 180 मिलियन की, और इसमें से अगर हम देखें तो 1 फेब से लेकर 31 अक्टूबर तक का हम लोग का हिसाब किताब है 180 मिलियन का। तो हम अगर वहाँ से काउंट करें 180 मिलियन को 1 फेब से 31 अक्टूबर तक गिने, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने बनते हैं हमारी इस टोटल पीरियड के। तो 180 को हम लोग 9 महीने पे ओवर द पीरियड वो कर देते हैं, तो उससे हमारे पास दो पोर्शन आ जाएंगे जिससे हम दो पोर्शन कैलकुलेट कर सकेंगे। एक तो वो को जो हमने पीएनएल में एक्सपेंस आउट करना है, और एक वो जो हमने इंटेंजिबल में कैपिटलाइज करना है। तो 1 फेब से लेके 1 मई तक का जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि फेब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने, वो हम एक्सपेंस आउट कर देंगे पीएनएल में, और जो इसके अलावा बाकी महीना होगा वो हम लोग अपना इंटेंजिबल में चार्ज करके, और उसको फिर 5 साल पे हम लोग उसको डिप्रिशिएट अमोर्टाइज कर देंगे 31 अक्टूबर के बाद से लेके। तो हम आ जाते हैं वहाँ पे एडमिन में। एडमिन का पहले अमाउंट क्या है हमारे पास, एडमिन की अमाउंट है हमारे पास 302 मिलियन की। 302 तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। सही है, अब हम पहले यहाँ पे आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम अपना। इंटेंजिबल कितना है 180 डिवाइड बाई 9 मंथ्स का, और 3 महीने हम लोगों ने उसमें एक्सपेंस आउट कर दिए, तो बकाया बचा 120। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट कितनी आएगी 180 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, 60 मिलियन की हमारी सीधी सीधी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है। अच्छा, अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है इस पर। अमोर्टाइजेशन कैसे चार्ज होगी 120 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ नहीं सॉरी 2 महीने हैं, अक्टूबर के 31 पे हुआ है, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने की, तो डिवाइड बाय 12, ये आ गई अमोर्टाइजेशन 4 मिलियन की। तो हम इसके अंदर ये इंक्लूड कर देते हैं 302 के अंदर ये 60 भी ऐड कर देते हैं, और ये हम ये 4 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ देखें, और कुछ है इसके अंदर। और डिप्रिसिएशन तो हमारे पास जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब होगी। अच्छा, ये है हमारे पास एक रिवैल्यूएशन का केस है भाई। रिवैल्यूएशन में उन्होंने रिवैल्यूड अमाउंट जो है, यानी इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया इन्होंने। तो हमारी कैरिंग को अमाउंट थी 900 मिलियन की, जो कि 1200 मिलियन पे आ जानी चाहिए फेयर वैल्यू के बाद। तो अगर हम इसको यहाँ पे देख लें, पीपी हमारा ऑफिस बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग 300 मिलियन की इसकी हमारी रिवैल्यूएशन की अमाउंट आई है 300 मिलियन की। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हमारी कितनी, ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 12 ईयर्स की है, ये रहा, ये लिखा हुआ। तो हम उसको 12 ईयर पर चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 300 डिवाइड बाई 12, 25 मिलियन की हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे एडमिन के अंदर। ठीक है, अब जो डेफर टैक्स का इम्पैक्ट वगैरह है इसका, वो हम जब कैलकुलेशन पे आएंगे तब देखेंगे। इसके बाद फिर इसके बाद सेलिंग पे आ जाते हैं हम लोग एक दफ़ा। फिर एक और गो थ्रू कर लें, कोई और बाकी तो नहीं रह गई, नहीं कोई भी नहीं है, तो कैपिटल गेन है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक ये ट्रेड रिसीवेबल की एडजस्टमेंट इसके अंदर जो इंक्लूड होगी। अच्छा, हम पहले ना इसके ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल से पहले, बल्कि सॉरी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अलाउंस फॉर बैड डेट, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, कितना है भाई ओपनिंग, ये रहा 44 का, ठीक है। क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना है,
कैसे क्लोजिंग होगा, सिंपल है भाई, 5% का हम अपने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डॉटफुल रेट चार्ज करते हैं। हमारा एंडिंग बैलेंस 1200 मिलियन का है, लेकिन इसके अंदर एक 40 मिलियन की राइट ऑफ करने की अमाउंट भी रह गई है, तो 40 मिलियन पहले 1200 से एक्सक्लूड करके 5% लगा देंगे। 1200 माइनस 40, 1160 आ गया, इस पर हम लोग अपना चार्ज कर देंगे 0.5%, यानी कि 5%, सॉरी। ये 50 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब जो डिफरेंशियल अमाउंट बची वो हम एज ए एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, 58 माइनस 44, ये हमारा सेलिंग में एक एक्सपेंस आ गया। सेलिंग का एक्सपेंस कितना है भाई, हमारे पास है 200 का, 200 प्लस 14 और प्लस 40 जो कि डायरेक्ट राइट ऑफ हो रहा है, रिसीवेबल को जो डायरेक्ट हिट कर रहा है इस अकाउंट में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में हिट नहीं हो रहा, 254 का। ठीक है, इसको ज़रा मैं माइनस लगा दूँ आखिरी में इनके। टू 54, ठीक है। अब हमने इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट रह जाएगी हमारे पास, और एक हमारे पास आई थी गैस अदर इनकम है, बिल्कुल अदर इनकम है, फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट की भी कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट की अमाउंट सीधी सीधी हम लोग यहाँ पे 48 मिलियन डाल देते हैं। 48 मिलियन की फाइनेंस कॉस्ट आ गई हमारे पास। अदर इनकम, अच्छा, अदर इनकम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक 36 की अदर इनकम ये आ रही है, एक कैपिटल गेन आ रहा है और एक डिविडेंड इनकम आ रहा है। 36, 50 और 36, लेकिन एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे जो कि यहाँ इसने बताई भी है। इंटरेस्ट जो कि 16 मिलियन का इनको बोरिंग कॉस्ट की जो अमाउंट इन्होंने वो जो लोन लिया था उन्होंने, जिस पे इनको इन्होंने इन्वेस्ट करने को इनकम हुई है, ये इन्होंने अदर इनकम में चार्ज कर दिया, बल्कि जबकि उनको नेट ऑफ करनी चाहिए थी CWIP में से। तो इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अदर इनकम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। तो 30, 50, 36 और माइनस 16, ये आ गई हमारी 100 की अदर इनकम। ये आ गया 587 का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेशन की अमाउंट आएगी, इसके बाद हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे नोट्स, एक नोट्स की रिक्वायरमेंट भी है, तो नोट्स भी हम इसके बना लेते हैं। सिर्फ हेडिंग डाल देता हूँ मैं, बाकी भी फॉर्मेलिटीज़। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है। सबसे पहला नोट टैक्सेशन का हो जाएगा। टैक्सेशन के अंदर भी हम दो नोट डालेंगे, एक तो रिकन्सिलेशन का जो उसने कहा था, और एक टैक्सेशन का डालेंगे हम इसको यहाँ पे। टैक्सेशन, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे अपना करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। यहाँ पे अमाउंट आएंगी दो, अच्छा यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं क्योंकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आएगी ना यहाँ पे, तो मैं ज़रा यहाँ पे स्पेस डाल दूँ। टैक्स की अमाउंट मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ। अच्छा, फिर एक रिकन्सिलेशन बनेगी हमारी 1.1 रिकन्सिलेशन, ठीक है। अब वो रिकन्सिलेशन पाएंगे तब की तब देखी जाएगी। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे ये भी डाल दें, अदर इनकम का भी एक हेड डाल दूँ मैं, सॉरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव, जो हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ भाई। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अच्छा अदर कॉम्प्रिहेंसिव में एक हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस 300 मिलियन का हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस था, हम यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं।
ये रहा रिवोल्यूशन सरप्लस 300 मिलियन का। तो ये हमारी इनकम है, ये रहा यहाँ पे 300 मिलियन डाल देते हैं इसको। अच्छा अब इस पर लगेगा डेफर टैक्स। डायरेक्ट ओसीआई के थ्रू जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ना ही इसको यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे हम लोग अपना 32% का रेट। ये हमारे पास आ गया डेफर टैक्स एक्सपेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। सही। अच्छा अब हम बढ़ते हैं आगे अपने करंट टैक्स की वर्किंग की तरफ। करंट टैक्स में हम लोग ने सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट 587 मिलियन का। ठीक है, उसके अंदर अब कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लेस कर देंगे। ऐड में हमारे पास एक पहली एडजस्टमेंट है, ओनली राइट ऑफ्स आर अलाउड एज डिडक्शन। यानी कि जो हमने 14 मिलियन का बेड डेट एक्सपेंस बुक किया था, बेड डेट्स एक्सपेंस बुक किया था हमने 14 मिलियन का, वो यहाँ पे ऐड बैक हो जाएगा। सही। और 40 मिलियन तो हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे मज़ीद उसको नीचे जाके लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कैपिटल वर्क एंड प्रोग्रेस की। यहाँ पे हम लोग उसको अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमने यहाँ पे देखें 16 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो अदर इनकम में चार्ज की हुई थी, वो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे एलिमिनेट कर दी है। कहाँ पे? यहाँ पे तो ये हमारी ऑब्वियसली बात है, इसमें नहीं आ रही होगी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ भी नहीं आ रही होगी 587। तो हम उसको अपनी इनकम चार्ज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम। वो हम यहाँ पे चार्ज कर देते। कितने की थी हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम? 16 मिलियन की थी आई गेस। ये 16 मिलियन की थी, ये भी ऐड हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद हमारी एक ये चीज़ रह गई हमारी अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन हमारी 4 मिलियन की अमोर्टाइजेशन है। ये इसका एक पॉइंट था, वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको क्यों हमने लिया। ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट टोटल हुई है उस इंटेंजिबल एसेट पे, वो जो एसेट पे हमारी वो 10 मिलियन पे हम लोग करेंगे उसको। तो सॉरी 10 ईयर्स पे करेंगे हम लोग। तो हमारी 180 की थी, हम यहाँ पे उसको माइनस कर देते हैं हम उसको यहाँ पे। अमोर्टाइजेशन टैक्स के हिसाब से 180 डिवाइडेड बाय 10। सही। नेक्स्ट, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019 एक्सीड अमाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बुक्ड इन बुक्स बाय 200 मिलियन। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि भाई ये जो इसने बताया है कि टैक्स डेप्रिसिएशन 200 मिलियन ज़्यादा है उससे जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड बुक्स है। यानी कि जो बुक्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड है वो सिर्फ कॉस्ट मॉडल की रिकॉर्ड हुई हुई है। हमने जो रिवैल्यूएशन मॉडल की अलग से जो हमने ये जो 300 मिलियन की जो हमने अलग से 25 मिलियन की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जो इसने जहाँ पे पॉइंट बताया है उसने उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी कि हम लोग का जो 200 मिलियन है वो 200 और उसमें 25 प्लस हो जाएंगे, यानी कि 175 से जाएगी। 175 से एक्सीड कर रही है। उसने जब बताया था कि भाई हमारी 200 से एक्सीड कर रही है, तब हमने 25 को एज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया हुआ था। फिर जब हम ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस कम हो जाएगा। और डिफरेंस कितने से कम होगा? 175 से कम होगा। और क्योंकि हम लोग ने डेप्रिसिएशन और ऐड किया अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम करते हैं अपने डेप्रिसिएशन तो ये और डिफरेंस बढ़ जाता है, 200 से और ऊपर चला जाता। तो यहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडेड जो भी है, लालच पर इनका हमें ध्यान नहीं रखना। भी 175 ये अमाउंट आ जाएगी इसकी। इसके बाद फिर हम लोग और पॉइंट्स देखते हैं। इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास? ये कैपिटल गेन आ गया, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। डिविडेंड आ गया हमारे पास। ये दोनों देख लेते हैं चीज़ें, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। अच्छा कैपिटल गेन कितने का है हमारे पास?
ऊपर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल गेन 50 मिलियन का और डिविडेंड कम है 30 मिलियन की। 50 मिलियन का कैपिटल गेन, 30 मिलियन की डिविडेंड इनकम। ठीक है, इसके बाद फिर एक ये आ रहा है हमारे पास बोरिंग कॉस्ट, एक ये रह गई थी हमारे पास, ये इंटरेस्ट कॉस्ट। ये हम लोग उसको अपना यहाँ पे से लेस करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट को एक्सपेंस चार्ज कर रहा है टैक्स वाला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बोरिंग कॉस्ट अलाउड व्हेन इनकर्ड, इस हिसाब से इसको हम 84 यहाँ डिडक्ट कर देंगे। तो अगर हम इसका टोटल लें तो हमारे बनती है 264। सही। अच्छा, यहाँ पे हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐड नहीं करी है, एक ही गलती कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 10 साल पे जब उसको कर रहे हैं हमने यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया, उसका अफेक्ट ख़त्म नहीं किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 324 की करंट टैक्स की टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया हमारा, टैक्सेबल प्रॉफिट। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। करंट टैक्स एट स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पे आ जाएगा लो रेट या चेंज रेट, जो भी आप लिखना चाहें। स्टैंडर्ड रेट से आ जाएगा 324 मल्टीप्लाई बाय 32%, 103.66। और डिविडेंड इनकम हमारी जो है, अब उसमें एक डिविडेंड इनकम में भी एक चीज़ इन्होंने डाली है, देखिए मैं आपको देता हूँ। डिविडेंड हमारे पास कितनी है, 30 मिलियन की है, लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास डिविडेंड रिसीवल भी खड़ा हुआ है 10 मिलियन का, यानी कि 20 मिलियन हमें रिसीव हुई है और 30 मिलियन और 10 मिलियन में रिसीव है। तो यहाँ पे देखिए नोट देखें हमारे पास, ये कैपिटल गेन का इसने क्या लिखा है, सॉरी डिविडेंड का क्या लिखा है इसने, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है और 15% इस साल है, 20% अगले साल है। तो जितनी हम लोग ने रिसीव कर ली है 30 में से 20 मिलियन में रिसीव कर ली है, तो वो 15% पे टैक्सेबल होगी, और जो हमने रिसीव नहीं की है वो डिफ़र होगी और वो 20% पे हमें रिसीव हो, वो 20% से टैक्स कट के हमें रिसीव होगी वो। तो हम यहाँ पे करंट टैक्स चार्ज करेंगे 20 पे 15% का, ये हमारे पास आ गया करंट टैक्स 106.68 का। अब डेफर टैक्स की वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, डेफर टैक्स में पहले तो एक डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, ये 175 का। डेप्रिसिएशन तो तकरीबन हर जगह होता है, तो पहले आप एग्जाम में कोशिश करके डेप्रिसिएशन ही देख लिया करें, ताकि आपके मार्क्स सिक्योर होते रहें फ़ौरन। 175 इंटू 32 56। अच्छा, ये हमारे पास है टैक्सेबल डिफरेंस। टैक्सेबल डिफरेंस कैसे भाई, कि भाई टैक्सेशन वालों ने हमसे ज़्यादा टैक्स चार्ज किया है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है और टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है और टैक्सेबल प्रॉफिट टैक्स का प्रॉफिट कम है। तो टैक्स का प्रॉफिट कम है तो आप हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, टैक्स का प्रॉफिट कम है, तो जिसकी वजह से टैक्सेबल डिफरेंस अराइज होगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं दूसरा अपना बेड रेट्स पे। बेड रेट्स की 14 मिलियन का अमाउंट है, जो कि टैक्स वाले ने नहीं माना, जबकि हमने अपनी इनकम में अपने एक्सपेंसेस में उसको दिखाया है, यानी कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है और टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये हमें राइज देगा डिडक्टिबल डिफरेंस को 4.48। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम इंटेंजिबल्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जो भी अब इसको नाम दें यहाँ पे। अच्छा, उसमें क्या मसला हुआ है भाई, उसमें यह हुआ है कि भाई 60 की हमने एलिमिनेट की है, 4 भी हमने एलिमिनेट किया, देखें ये रहा, यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया है, अपना एक्सपेंस ख़त्म किया है अपना, और हमने एक्सपेंस कितना शो किया है हमने 18 मिलियन का। ठीक है, ये अमाउंट बनती है 46 की। हमने इतना हमारा और टैक्स का इस अमाउंट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अमोर्टाइजेशन का इतना डिफरेंस बनता है हमारा, यानी कि हमने ज़्यादा एक्सपेंस आउट किया और उसने कम एक्सपेंस आउट किया, यानी कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, जिसकी वजह से हमारा डिडक्टिबल डिफरेंस आएगा और टैक्सेबल डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पे
मल्टीप्लाई बाय 32%, 14.72 का। इसके बाद फिर बोरोइंग कॉस्ट का आएगा। बोरोइंग कॉस्ट में हमारी अमाउंट आएगी 84 माइनस 16 की। इसके ऊपर टैक्स रेट लगाएंगे हम लोग 32%, 21.76 की अमाउंट बन जाएगी। और एक डिविडेंड इनकम है जो कि हमारी हम लोग चार्ज कर रहे हैं 20% से, लेकिन हमने कमाए सारे तो टैक्स भी इस साल ही बुक करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 इंटू 2। यहाँ पे टैक्सेबल डिफरेंस आया क्योंकि भाई हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और डिविडेंड इनकम कम है, ओ सॉरी टैक्सेबल इनकम कम है, तो जिसकी वजह से हमारा टैक्सेबल डिफरेंस अराइज हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भाई ये क्यों आया टैक्सेबल डिफरेंस, ये इस वजह से टैक्सेबल डिफरेंस आया क्योंकि भाई हमने टैक्सेबल जो टैक्स वालों ने है वो उसको एज एक्सपेंस माना है 84 को, और 16 को इनकम माना है। तो इन्होंने नेट में कितना हमें 84 माइनस 16 करेंगे हम लोग तो 68 का इन्होंने अपने पास प्रॉफिट कम रिकॉर्ड किया है, यानी क्योंकि इंटरेस्ट इन्होंने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया है और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है जिसकी वजह से एक टैक्सेबल डिफरेंस आएगा। तो ये की रूल है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है टैक्सेबल प्रॉफिट कम है तो हमारा टैक्सेबल डिफरेंस आएगा, और अगर इसका ही उलट है यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिडक्टेबल डिफरेंस आएगा। इसी तरीके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यही है भाई हमारा। अच्छा, हम इसको टोटल कर लें ज़रा। यहाँ पे डिडक्टेबल डिफरेंस है, यहाँ पे डिडक्टेबल डिफरेंस क्यों है भाई, आपको वही लॉजिक है, हमने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया है अकाउंटिंग में और इन्होंने यहाँ पे कम रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा कम हुआ टैक्सेबल ज़्यादा हुआ, तो टैक्सेबल ज़्यादा होगा तो हमारा डिडक्टेबल डिफरेंस आएगा। डेफर टैक्स की अमाउंट यहाँ पे ले लेते हैं भाई 60.56 की, ठीक है। 167.24 का हमारा टैक्स आ गया, यहाँ पे टैक्स की अमाउंट भी आ गई और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारा टोटल हमारा जो प्रॉफिट होगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर ले लेते हैं हम यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर ऐसे आएगी भाई 204, और ये हमारी आ गई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रिकन्सिलेशन एक हमारी रिक्वायरमेंट रह गई है, हम रिकन्सिलेशन बना लेते हैं तो हमारा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, 20 मार्क्स का इस सवाल कंप्लीट हो जाएगा एक। अच्छा, अब आना चाहिए ये प्रॉफिट, अब हम इसको यहाँ पे रिकन्साइल करते हैं कि भाई टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होता है, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 187.84 होना चाहिए था, तो भाई 167.24 क्यों हुआ, एक तो भाई डिविडेंड इनकम और डिविडेंड इनकम के भी दो वो हैं, एक तो ये कि भाई जो 15% पे चार्ज हुई और जो 20% पे चार्ज हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं भाई उसको कैसे, 20 मिलियन की हमारी एक डिविडेंड इनकम थी जो 15% से चार्ज हो रही है, अब वो होनी हमने यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे जो 187.84 आ रहा है यहाँ पे डिविडेंड इनकम तो है तो सही शामिल, लेकिन वो है 32% पे शामिल, तो हम इसको यहाँ लेस कर देंगे हम लोग, तो 20 इंटू कितने से लेस करेंगे, कितने परसेंट से, 32 होना चाहिए था, 32 ऊपर है और हमने चार्ज किया है 0.15 पे, तो इस हिसाब से ये 3.4 हो जाएगी, यानी कि 3.4 हमने यहाँ पे जो 187.84 है इसमें 3.4 ज़्यादा इंक्लूड हुआ है। इसी तरीके से सेम इज़ द केस फॉर दिस, यहाँ पे 10 मिलियन रखेंगे और 32 मिलियन तो होना चाहिए था, ऊपर 32 मिलियन 32% चार्ज हुआ है, लेकिन हम लोग को टैक्स जो अथॉरिटी है वो 20% चार्ज करेगी, अब तो उसको हम इस तरीके से कर देंगे, तो ये एक डिफरेंस आ गया। अच्छा, और एक होगा हमारा कैपिटल गेन का जो कि एग्जाम्प्ट है। अच्छा, कैपिटल इनकम की गेन की इनकम क्या है, 50 मिलियन है,
तो उसको मल्टीप्लाई बाय सीधे सीधे 32% कर देंगे, क्योंकि ऊपर पूरी पूरी 32% से चार्ज हुई है और हमारे 32% पूरी पूरी एग्जाम्प्ट है। तो उसको अगर टोटल करें 167.24, here it is and it is reconciled to। सो उम्मीद है आप लोग को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हुई होगी वाइल सॉल्विंग द पेपर या वाइल प्रैक्टिसिंग, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उससे नोटिफाइड रहें।